Hello everyone. In this video, we'll be covering Introduction to Computer Network. So let us start. So now first we will see what are computer networks. So introduction की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारे होते क्या हैं. So computer network are basically your interconnection among two or more computers. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में अगर हम कनेक्शन क्रिएट कर दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. ओके एंड ज़रूरी नहीं है फिर कंप्यूटर्स के बीच में हो, इट कैन ऑल्सो बी बिटवीन योर कंप्यूटिंग डिवाइसेस. So now what are those computing devices? So वो computing devices can be like, for example, it can be a switch, it can be a router, it can be a modem, and many more devices can be there. Okay, now what are the features or the benefits of creating a computer network? So let us see some of the features or characteristics or benefit of creating a network. So now by creating a network we can share data and resources, number one, and the network size जो होगा वो depend करेगा कि हमने कितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, एंड दैट एक्चुअली मे वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल टू लार्ज. देन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट, also called nodes. Like for example, it can be server, it can be desktop, it can be laptop, it can be even your mobile phones. Okay, so this is a brief introduction about what are computer networks. So let us move forward. So let us see how data is carried in a network. So for communication, data in a network is divided into smaller chunks called packets. तो जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो पहले क्या करेगा, आपके डाटा को वो ब्रेक डाउन कर देगा इन स्मॉल पार्ट्स, और उन स्मॉल पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं पैकेट्स. और फिर उसके बाद वो जो पैकेट्स होते हैं वो हमारे नेटवर्क में कैरी होते हैं. एक जगह से दूसरी जगह सारे पैकेट्स जाएंगे, और जब सारे पैकेट दूसरी जगह रिसीव हो जाते हैं वो बंडल हो जाते हैं, एंड देन जिस तरीके से हमने डाटा को सेंड किया था उसी तरीके से दूसरी जगह पे वो रिसीव हो जाता है. लेट अस सी हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क. So devices in a network can be connected either through wire or, like for example, the wire की बात करें तो media like cables, or it can be wireless media like for example the air. ठीक है. So now each device that is a part of the network is known as node. So ये बहुत important चीज़ है कि हम हर डिवाइस को नोड में, डिवाइस ना बोल के, कंप्यूटर ना बोल के, लैपटॉप ना बोल के, we can call them as your nodes. So each device that is a part of the network we can call them as your nodes. Okay. Now let us see the different types of network. So there are four different types of network. That is your PAN, that is personal area network, LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, WAN, wide area network. एंड ये जो हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क फॉर्म हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया वो कितना कवर कर रहे हैं और उनका डाटा ट्रांसफर रेट क्या होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद PAN, that is personal area network. So personal area network is a very small, okay, is a very small network. So this is one of the smallest network designed to connect devices close to one person. मतलब कि एक पर्सन के नज़दीक जितने डिवाइसेस होंगे उनको वो कनेक्ट करता है. दैट इज बेसिकली योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो उस जो वो डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं वो उसका पर्सनल डिवाइसेस है सारे. ठीक है, किसी और के डिवाइसेस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइस नहीं है, वो उसके सारे पर्सनल डिवाइसेस हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. It covers a very short range. So it covers a very short range, typically few meters. Okay, for example, maybe 100 meters तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 to 60 meters, 70 meters, इतना ही उसका रेंज रहता है. Now imagine you connect your smartphone to your smartwatch or Bluetooth headphone. So that is your personal area network. Or you transfer files between your laptop using Bluetooth. That is also your personal area network. Then is we have the local area network. Now local area network की बात करते हैं तो ये एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर हमारा नोड्स को इंटरकनेक्ट करता है. सो नाउ वो लिमिटेड डिस्टेंस कितना होता है? सो दैट लिमिटेड डिस्टेंस इज बेसिकली इट कैन रेंज फ्रॉम वे अ सिंगल रूम और अ फ्लोर, और इट कैन बी एन ऑफिस having one or more buildings in the same premise. That means if a particular premise have multiple buildings, वो सारी buildings आपस में connect हो रही हैं, that actually makes your local area network, that is LAN. Then is we have the laboratory, school, college, university campus, they all form your local area network. So these type of networks can be extended only up to 1 kilometer. So the range of this particular, that is your local area network, is your 1 kilometer. Then is we have data transfer in LAN is very high. So इसका जो data transfer rate है वो बहुत high है, and that usually varies from 10 Mbps जिसको हम लोग बोलते हैं Ethernet, okay, to 1000 Mbps that जिसको हम बोलते हैं Gigabit Ethernet.
वेयर Mbps स्टैंड्स फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड एंड इथरनेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आया ना 10 Mbps, सो Mbps वी नो मेगाबिट्स पर सेकेंड बट वी कॉल दैट एज इथरनेट. तो इथरनेट का मतलब क्या होता है? सो इथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू केबल इन अ लोकल एरिया नेटवर्क और LAN. So it is basically a set of rules. You can just underline this particular thing and note down in your notebook. That is, what is Ethernet? Ethernet is a set of rule which actually decides कि किस तरीके से हमारा ट्रांसमिशन होगा हमारे नेटवर्क के अंदर. दैट इज योर नोन एज योर इथरनेट. देन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नेटवर्क इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हम बात करते हैं तो इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर LAN एंड विच कवर्स अ लार्जर जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, like a city or a town, and the data transfer rate in MAN also ranges in Mbps, but it is considerably less as compared to the LAN. So data transfer rate is also high, but as compared to LAN कम होता है. So cable TV network or cable based broadband internet services are examples of MAN. तो केबल टीवी नेटवर्क और हमारा केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो सर्विसेज हैं वो सारे मैन के एग्जांपल हैं. दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी ओनली एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स ओनली. फॉर एग्जांपल लैन हमारा था ओनली 1 किलोमीटर, वेयरएज जो मैन की बात करते हैं दैट इज इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर्स, नॉट बियॉन्ड दैट. सो समटाइम्स मेनी लैंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म मैन. सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द लैन. ये एक LAN है, ये सेकेंड LAN है, एंड when we connect these 4 LANs we actually call that as your metropolitan area network, that is MAN. Okay, now let us move further. Then is the next type of the network, or the fourth type of the network is your WAN, that is wide area network. जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, so it connects computers and other LANs and MANs which are spread across different geographical locations of a country or in different countries or continents. So that means अगर for example if I want to connect an office from Delhi to Mumbai, तो एक ही सेम कंट्री में है but it will actually form a WAN because इसका geographical location है that is beyond 30 to 40 kilometers. अगर वो 30 to 40 kilometers के एरिया के अंदर होता तो we would have called that as metropolitan area network. बट वंस इट गोज बियॉन्ड दैट, सो वो सेम कंट्री में हो चाहे डिफरेंट कंट्री में हो चाहे डिफरेंट कॉन्टिनेंट में हो, इट विल एक्चुअली फॉर्म योर वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं वैन. नाउ वैन कुड बी फॉर्म्ड कनेक्टिंग लैंड टू अदर लैंड्स, ओके, एंड लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू वैन. तो हमारे लार्ज बिजनेसेस, एजुकेशनल्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में सब इंटरकनेक्ट करते हैं अपने ऑफिसेस को थ्रू वैन ओनली, बिकॉज उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है. जैसे कि हमारे लैन में लिमिटेशन होती है 1 किलोमीटर की, देन इज मैन में होती है, बट वैन के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती. सो द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन. सो प्लीज अंडरलाइन दिस एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक दैट द लार्जेस्ट वैन इज योर इंटरनेट. सो दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स and millions of LANs from different continent. Okay, let us move further. Now we'll see what are network devices. Okay, now network devices में सबसे पहला जो device है that is basically your modem. Now modem का अगर हम full form देखें तो it's basically your modulator. MO stands for your modulator, that DEM stands for demodulator. Okay, now it refers to a device used for conversion between analog signal and digital bits. Now एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच में जो कन्वर्जन होता है दैट इज डन बाय दिस मॉडेम डिवाइस. जो मॉडेम है, अगर वो सेंडर एंड की बात करते हैं, सेंडर एंड का मतलब है इफ यू आर सिटिंग हियर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, नाउ इफ यू वांट टू सेंड अ पर्टिकुलर डाटा टू दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर, सो नाउ जब आप कंप्यूटर से सेंड करोगे तो वो जो कंप्यूटर का जो डाटा होगा वो हमारा डिजिटल डाटा होगा. लेकिन हमारी जो लाइन है इट कैन ओनली take analog signals, it cannot take digital data. So what this modem will do is it will convert the digital data into analog signal. So ये जो हमारा digital data है ये convert यहाँ पे आके ये convert हो जाएगा analog signal में, and then analog signal traverse करेगा, ठीक है, through telephone lines, and then receiver end पे जो modem लगा होगा वो analog signal को receive करेगा और वापस वो convert कर देगा आपके digital signals में. So that is, it converts digital signal to analog signals, and then analog signals are converted back to the digital signal at the receiver's end. So this is how the modem works. Okay, now let us move to the next device and let us see hub. So what is a hub? So hub की हम बात करते हैं तो Ethernet hub is a network device. Okay, ये सारे devices हैं used to
कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। तो अगर वायर से बहुत सारे डिवाइसेस को आपको इंटरकनेक्ट करना है, देन यू रिक्वायर अ हब और अ स्विच। बट हब की हम अगर बात करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देखते हैं। सो नाउ डाटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन्स आर सेंट आउट टू ऑल द अदर्स। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है, उसने डाटा भेजा 1 को, now 1 will receive that particular data, but it will send to 2 as well, it will send to 3 as well, it will send to 4 as well, it will send to 5 as well, and it will send to 6 as well, and it will send to 7 as well, and finally 8 as well. हमने हालांकि जो डाटा भेजा था वो सिर्फ 8 के लिए था मान लो, लेकिन the data which is sent to 1 will be received by all the nodes. ठीक है, so ये इसकी लिमिटेशन है। And the limitation of hub is that if data of from 2 devices come at same time, अगर for example कि 5 भी अगर डाटा एक ही बार में भेज रहा है जिस टाइम पे 1 भेज रहा है, तो उस केस में they will collide and किसी को भी डाटा रिसीव नहीं करेगा। तो ये एक लिमिटेशन है हब की। बिकॉज ये लिमिटेशन है हब की, तो इसलिए उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस आया जिसको हम बोलते हैं स्विच। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट डिवाइस। Now, what is a switch? Now, switch is a network device that plays a central role in the local area network. Like a hub, a network switch is used to connect multiple computers or computing devices. तो मेन जैसे हमारा हब का काम था कि मल्टीपल कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए होता है, सेम स्विच का भी काम ये है। बट जो फर्क आ गया वो आ गया वर्किंग में। दैट मीन्स इसके अंदर क्या होता है, इट सेंड सिग्नल टू ओनली सेलेक्टेड डिवाइसेस। मतलब 1 ने अगर 8 को डाटा भेजा है तो 1 जो है वो सबको नहीं भेजेगा। अगर ये 1 पे डाटा आया तो 1 जो है सिर्फ वो 8 को भेजेगा डाटा, बाकी किसी और को नहीं भेजेगा। सो इट ओनली सेंड सिग्नल्स टू ओनली द सेलेक्टेड डिवाइस, नंबर 1। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट दैट सेम टाइम। हब में आपने देखा क्या हुआ, अगर 2 नोड्स अगर साइमल्टेनियसली पैकेट सेंड करते हैं तो वो कोलाइड कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे multiple nodes can send packets at the same time. A switch does not forward the signal which are noisy or corrupted. ये भी एक एडवांटेज है। Now अब आप बहुत एग्जाम्पल आएगा नेटवर्क की जब बात करेंगे तो नॉइजी का मतलब क्या हो गया। अब नॉइजी का मतलब हो गया, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और फ्रेंड से बात करते टाइम क्लास में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो आपको सुनने के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने फ्रेंड के साथ। सो दैट इज़ बेसिकली जो वो सेंड कर रहा है अपनी वॉइस, तो वो उसमें क्या है, नॉइजी डाटा है, बैकग्राउंड नॉइज भी है। उसी तरीके से हमारे पैकेट्स में भी कई बार नॉइजी डाटा होता है, करप्टेड डाटा होता है। तो वो डाटा को स्विच क्या करता है, इट ड्रॉप सच सिग्नल्स, तो उनको वो ड्रॉप कर देता है, क्योंकि ऐसे जो सिग्नल होते हैं या ऐसे जो डाटा होते हैं वो करप्टेड होते हैं और वो सेंडर को वापस भेजने के लिए बोलता है। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में ही होता है, नोबडी इज सिटिंग कि भाई वो भेजेगा, नो, इट इज डन ऑटोमेटिकली। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ योर स्विच। फर्स्ट इज इट सेंड सिग्नल ओनली टू द सेलेक्टेड डिवाइस, नंबर 2 इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम, नंबर 3 इट डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल विच आर नॉइजी और करप्टेड एंड इट ड्रॉप सच सिग्नल्स एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड अगेन। लेकिन मेन पर्पस स्विच का क्या है, मेन पर्पस स्विच का है टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो हमारा हब का भी था। ठीक है, let's see next device, and the next device is basically our repeater. So now what is a repeater? So repeater is an analog device that works with signals on the cables to which it is connected, and इसमें जो main काम है, the weakened signal, ये ध्यान रखो, the weakened signal appearing in the cable is regenerated. That means it actually regenerates the weak signals. तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लो कॉपी में, इट रीजनरेट्स द वीक सिग्नल्स एंड पुट बैक ऑन द केबल बाय द रिपीटर. So that means, for example, if we have a repeater here, and for example, these are it receives a particular signal, and you can see the signal is weak here. Okay, it receives and then it regenerates and sends it back to the network. So इस तरीके से ये काम करता है. So data are carried in the form of signals over the cable. These signals can travel a specified distance. यूजुअली अगर हम केबल की बात करते हैं तो रिपीटर हमारा 100 मीटर पे प्लेस होता है. सो दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ कंप्यूटर एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन एंड आई हैव अ कंप्यूटर एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन, दिस इज कंप्यूटर नंबर 2 एंड आई वांट टू कनेक्ट दीज 2 कंप्यूटर्स and the distance between them is 125 meters. Now it is beyond 100 meters. So ये 100 मीटर से ज़्यादा है. तो when the data will travel, यहाँ तक आते आते वो लॉस हो जाएगा, it will never
these two computers will never get connected to each other because of the loss of the signal. So अब हम क्या करेंगे, we will put a repeater at say let's say for example 90 meters पे लगा दिया, 100 मीटर तक हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. So you can place at a specific position, let's say 90, 99 पे भी लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. So you can place a repeater here and then it will regenerate the signal and then it will connect here. So repeater is basically a device which regenerates the weak signals. आप इस तरीके से याद रख सकते हो. So signal lost their strength beyond this limit and become weak. In such conditions, original signals need to be regenerated. So repeater is a device that regenerates the signal. ये आप रेड कलर में जो मैंने लिखा हुआ, आप नोटबुक में ये लिख लो, what is a repeater. ओके, और 100 मीटर्स के बियॉन्ड हमें रिपीटर लगाना ही पड़ता है बिकॉज उसके बियॉन्ड सिग्नल लूज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज लेट अस सी व्हाट इज राउटर. सो नाउ राउटर बहुत मतलब आपके घर में लगा होगा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, तो वही इसका मेन पर्पस है. सो राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डाटा. नंबर वन, इसकी डेफिनेशन बहुत आती है राउटर की, तो इसको प्लीज लिख लेना, ठीक है. इसका 3 काम होते हैं. राउटर पहला रिसीव्स द डाटा, सेकेंड इज जो उसने डाटा रिसीव किया उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, चेक करेगा, ठीक है. चेक करने के बाद उसमें से अगर कोई नॉइजी डाटा है जैसे स्विच करता था तो वो उसको रीट्रांसमिट करने के लिए बोलेगा, और उसमें ये भी देखता है कि वो किसको भेजना है, उसका एड्रेस वगैरह क्या है, वो सब चीज़ें करता है. देन इज इट ट्रांसमिट इट टू द अदर नेटवर्क. अब ये इंपॉर्टेंट है, इट ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क, सेम नेटवर्क नहीं. जो स्विच है वो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है जनरली, ठीक है. लीजिए राउटर है, राउटर का काम है डाटा को रिसीव करना, एनालाइज करना और ट्रांसमिट करना दूसरे नेटवर्क में. A router connects a local area network to the internet. That means हमारा जो LAN होगा उसको अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है, the device that we use is basically your router. Now compared to a hub or a switch, a router has advanced capabilities. जैसे मैंने बताया it is similar to switch, but switch जो होगा सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, लेकिन दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, then we use a router. Now advanced capabilities कौन कौन सी हैं? It can analyze the data being carried over a network, decide or alter how it is packaged and send it to the other network of a different type. तो different type network को भी भेज सकता है. Router can be wired or wireless. जो हमारा switch होता है वो हमारा सिर्फ wired होता है, लेकिन जो router है वो wired या wireless हो सकता है. Next is a wireless router can provide Wi-Fi access to smartphones and other devices. Usually such routers also contain some ports to provide wired internet access. तो इसके अंदर wired और wireless दोनों internet access देने की कैपेबिलिटी होती है राउटर के अंदर. Now these days home Wi-Fi routers perform the dual task of a router and a modem or a switch. तो मतलब कि राउटर का मल्टीपल काम कर सकता है, वो राउटर की तरह भी काम कर सकता है और वो स्विच की तरह भी, क्योंकि इसमें लैन पोर्ट्स भी होते हैं बहुत सारे. सो दीज राउटर्स कनेक्ट टू इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइन्स फ्रॉम ISP and convert them to digital data for computing devices to process. So these are some of the advantages or features or characteristics of your router. So basic इसमें आप 3 पॉइंट ध्यान रखना. It receives the data, analyze it and transmit it to the other network. Okay, and router can be either wired or wireless. It is generally used to connect your local area network to your internet access. Then is the next device is your gateway. So let us see what is a gateway. So gateway is like a bridge. So ये नाम से पता चल रहा है, it is a gateway. So it is like a bridge that connects two different network. दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है of different protocols. उनके अंदर मतलब प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो किस तरीके से वो लैन फॉर्म हुआ है, नेटवर्क फॉर्म हुआ है, हमें मतलब नहीं है. हमें दो नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करना है. देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर ब्रिज दैट इज योर गेटवे, सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. So besides routing data packets, gateways also maintain information about the host, networks, internal connection paths and the identified paths of other remote network. तो हमारा गेटवे का जो मेन काम होता है वो होता है कि जहाँ से हम डाटा को सेंड कर रहे हैं उसके वो सारे पाथ को याद रखें, और जहाँ हम डाटा भेज रहे हैं रिमोट नेटवर्क को उसके भी वो सारे पाथ को याद रखें. So if a node from one network wants to communicate with a node of foreign network, it will pass the data packet to the gateway, which then routes it to the destination using best possible route. तो ये बेस्ट पॉसिबल रूट के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. ओके, सो नाउ फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम्स द गेटवे इज यूजुअली द ISP, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर.
तो घर के अंदर हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो गेटवे का काम करता है। नाउ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? जैसे हमारे घर पे राउटर लगा हुआ है, नाउ राउटर हमने जियो का लिया या लेट्स से फॉर एग्जांपल एयरटेल का लिया। अब अगर एयरटेल का हमारे पास राउटर है तो हमारा जो पहले डाटा है वो राउटर पे जाएगा, राउटर से फिर वो एयरटेल के जो हमारा आईएसपी है उसको वो एयरटेल ही है तो वो एयरटेल के सर्वर पे जाएगा। वो जो सर्वर है वो गेटवे का काम कर रहा है, वो आगे फर्दर फिर उस डाटा को लेके जाता है। सो दैट मीन्स बेसिकली हमारा जिससे हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, so generally a router is configured to work as a gateway device in computer networks. A gateway can be implemented as a software, hardware और combination of both. अब यहाँ पे ध्यान रखो, गेटवे और राउटर में हम डिफरेंस देखें तो हमारा राउटर तो हार्डवेयर ही डिवाइस है, लेकिन जो गेटवे है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों के कॉम्बिनेशन में काम कर सकता है। सो दिस इज बिकॉज अ नेटवर्क गेटवे इज प्लेस एट द एज ऑफ द नेटवर्क एंड द फायरवॉल इज यूजुअली इंटीग्रेटेड विद इट। तो गेटवे के साथ आपका फायरवॉल क्या होगा? इंटीग्रेटेड होता है। ओके, नाउ सो दीज वर द डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। लेट अस सी डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी। सो पहले टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो समझते हैं कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। सो इट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। मतलब जिस तरीके से हमने अपने डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट किया हुआ है उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। सो विल बी लर्निंग 4 टोपोलॉजीज। सो द फर्स्ट टोपोलॉजी इज योर मेश टोपोलॉजी। सो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है आपका? इन मेश टोपोलॉजी, इसका नाम से आपको पता चल होगा, मेश बना के रखा हुआ है। सो ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। सो फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी दिस फिगर, here we have 6 devices. So let us say this is device number 1, this is 2, this is device number 3, this is 4, okay, and this is device number 5 and this is device number 6. Now हर जो डिवाइस होगी वो दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो ये है ना, ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर हम नोड नंबर 1 की बात करें या डिवाइस नंबर 1 की बात करें, सो इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू 2, यू कैन सी दिस लाइन। Okay, so it is connected to 2, it is connected to directly to 3 as well, it is connected directly to 5 as well, it is connected directly to 6 as well, and it is connected directly to 4 as well. So now that means हर नेटवर्क डिवाइस आपका जो होगा वो डायरेक्टली दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। सिमिलरली 2 will be directly connected to 1, 2 will be directly connected to 5, 2 will be directly connected to 6 and so on. So such networks can handle large amount of traffic. तो इस टाइप के नेटवर्क में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वो हैंडल कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हर नोड या हर डिवाइस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आसानी से मल्टीपल ट्रांसमिशन एक साथ में चल सकती हैं। सिंस मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डाटा साइमल्टेनियसली। ऑल्सो सच नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल। तो इस टाइप का नेटवर्क जो है सबसे रिलायबल माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये नोड बंद है तो बाकी नेटवर्क तो फॉर्म रहेगा हमारा, है ना, कोई बीच में डिवाइस नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, तो बाकी नेटवर्क चलता रहेगा, सिर्फ वन को पास डाटा नहीं जा पाएगा। ओके, नाउ दिस टोपोलॉजी इज मोर सिक्योर, मोर रिलायबल, मोर सिक्योर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज बिकॉज ईच केबल बिटवीन 2 नोड्स कैरी डिफरेंट डाटा। तो वो डायरेक्ट हमने अगर मान लो डाटा भेजना है 4 को, तो 1 4 को डायरेक्ट डाटा भेजेगा, बीच में तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ना कोई डिवाइस लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ। सो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर टोपोलॉजी। हाउएवर वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई इन क्रिएटिंग सच नेटवर्क। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो वायरिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ये डिसएडवांटेज है, दिस इज डिसएडवांटेज, ये जो पॉइंट है दिस इज डिसएडवांटेज, बाकी सब एडवांटेज है। देन इज इसका जो केबलिंग कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होता है क्योंकि बहुत केबल यूज होती हैं एंड देयर आर मेनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज कनेक्शंस। तो इसके अंदर ये भी होता है, रिडंडेंट का मतलब हो गया आपका डुप्लीकेसी हो सकती है, डुप्लीकेट कनेक्शन हो सकते हैं। ओके, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं अनयूटिलाइज्ड कनेक्शंस भी बन सकते हैं इसके अंदर। सो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है मेश टोपोलॉजी के। सो लेट अस सी अनदर टोपोलॉजी एंड दैट टोपोलॉजी इज योर बस टोपोलॉजी। सो नाउ बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हर कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो होगा वो कनेक्टेड होगा आपका एक मीडियम के थ्रू, मीडियम हो गया जैसे वायर्ड या वायरलेस बोलते हैं ना, तो मीडियम के थ्रू, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं बस। So that means all nodes or computing devices are connected directly through the bus. Okay.
सो नाउ बस हो गया. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज. सो दिस इज योर बस. ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन आ रही है ना, दिस इज बेसिकली योर बस. ये हमारी बस है. फाइन. सो नाउ डाटा सेंड फ्रॉम अ नोड आर पास्ड ऑन टू द बस. फॉर एग्जाम्पल दिस लैपटॉप wants to send the data. So first it will send to the bus, okay, and hence are transmitted to the length of bus in both directions. तो उसने जब उसको डाटा भेजा तो वो इधर भी डाटा जाएगा, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ, मतलब पूरी बस में वो डाटा फैल जाएगा. So this means data can be received by any of the nodes connected to the bus. Now in this topology, a single backbone wire called a bus is shared among the nodes, so and which makes it cheaper and easy to maintain. तो इसका एक एडवांटेज ये है क्योंकि सिर्फ हम एक ही वायर को इस्तेमाल कर रहे हैं सारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, तो ये क्या हो गई, चीपर टोपोलॉजी होगी हम बोल सकते. बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजी आर कंसिडर्ड टू बी लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल. जैसे हम लोगों ने देखा कि मेश टोपोलॉजी इज मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट सिक्योर, लेकिन हमारा जो ये है रिंग और बस टोपोलॉजी ये लेस सिक्योर है एंड लेस रिलायबल है एज कंपेयर टू योर मेश टोपोलॉजी अगर हम बात करें तो. ओके, सो दिस इज द फीचर्स ऑफ योर बस टोपोलॉजी. सो बस टोपोलॉजी में मेन आपका जो ट्रांसमिशन है, जो कनेक्शन है डिवाइसेस का, दैट इज थ्रू bus only. Okay, next topology is your star topology. So अगर हम star topology की बात करते हैं तो star topology में each communicating device is connected to a central node. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब इस टोपोलॉजी के अंदर हम ना तो डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं ना बस यूज कर रहे हैं, बस इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ सेंट्रल नोड. तो ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू सारे हमारे कंप्यूटर्स या नोड्स कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ. इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हब या फिर स्विच. सो दैट मीन स्टार टोपोलॉजी में हब और स्विच की से डायरेक्ट कनेक्शन होता है सारे नोड्स का. नाउ इस टोपोलॉजी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं. तो स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव, efficient and fast. So this is one of the most effective, efficient and fast topology we can say. So as each device is directly connected with the central device. तो सारे जो नोड्स हैं वो सेंट्रल डिवाइस के पास कनेक्टेड है, तो वो जल्दी से डाटा आता है और वो दूसरे को फॉरवर्ड कर देता है. नाउ ऑल्दो डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क. अब यहाँ पे ये भी एडवांटेज है कि अगर एक डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो शटडाउन है, बंद काम नहीं कर रहा है, तो इससे नेटवर्क चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये भी एडवांटेज है इसका. सो इसका एडवांटेज हो गया, इट इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट. ठीक है, टोपोलॉजी. Disturbance in or problem in one device will not affect the entire network, but any failure in a central networking device, ये disadvantage है. अगर हमारा switch या hub central networking device जिसको हम hub या switch बोल रहे हैं जिससे connected है, अगर वो fail हो जाता है तो वो पूरे नेटवर्क को डाउन कर देगा. अगर ये खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी में. दिस इज योर लास्ट टोपोलॉजी. नाउ ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज अ हायरार्किकल टोपोलॉजी. तो नाम याद रखना, इट इज अ हायरार्किकल टोपोलॉजी. हायरार्किकल मतलब हो गया ट्री है ना, तो ब्रांचेस के फॉर्म में होगा. सो नाउ इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज. तो इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच के अंदर दूसरी टोपोलॉजी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि स्टार हो गई, रिंग हो गई, बस होगी. दो रिंग इज नॉट इन योर सिलेबस बट still you can write that as a ring. Okay, now such topologies are usually realized in vans. तो ऐसी ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये हमारा वैन के अंदर फॉर्म होती है, नॉर्मली लैन के अंदर नहीं फॉर्म होती है. सो वेयर मल्टीपल लैन्स आर कनेक्टेड, सो दोज लैन्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस और स्टार. So in this type of network, data transmitted from source first reaches the central device and from there the data passes through every branch where each branch can have link for more nodes. तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पहले डाटा जो है एक सेंट्रल नोड के पास आएगा, सेंट्रल नोड बाकी ब्रांच को भेजेगा, बाकी ब्रांच से आगे डाटा ट्रांसमिट होता है. So this is basically your tree or hybrid topology. So we have seen the four topologies, that is starting from the mesh topology, then bus topology, star topology and tree or hybrid topology. The most reliable topology we can say is basically your star topology. ठीक है, now next आते हैं टॉपिक पे and that is basically the internet. So let us see what is the internet. So internet की अगर हम definition देखें, the internet is the global network of computing devices. Please note down this line. Global network of computing devices. बहुत confusion होती है कि internet है क्या. So it is a network. तो network हम लोगों ने देख लिया ना, what are the different topologies. ठीक है, what is a network, interconnection of devices not is a network. So ये internet क्या है, ये भी एक network ही है, लेकिन कैसा network है, global network है ये.
So which includes desktop, laptop, server, tablet, mobile phone, other handheld devices, as well as peripheral devices such as printers, scanners, etc. So in addition, it also consists of networking devices such as routers, switches, gateways, etc. मतलब जितने भी डिवाइसेस आप सोच सकते हो आपस में अगर इंटरकनेक्टेड है और वो ग्लोबली कनेक्टेड है, दैट इज योर इंटरनेट. ओके, लेट अस सी हाउ यू गेट एन इंटरनेट. सो बेसिकली अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल कंप्यूटर. तो आपका कंप्यूटर है, वो कनेक्टेड है केबल से या वाईफाई से. अब वो किससे कनेक्टेड होगा, मतलब आपके कंप्यूटर से एक वायर निकल के गया, वो वायर किस में जाएगा, राउटर में आएगा. वो राउटर किससे कनेक्टेड होगा, आपके लोकल आईएसपी से कनेक्टेड होगा. वो लोकल आईएसपी किससे कनेक्टेड होगा, आपके रीजनल नेटवर्क से कनेक्टेड होगा. वो रीजनल नेटवर्क किससे कनेक्टेड होगा, आपके कंट्री के नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, जिसको हम बोलते हैं नेशनल नेटवर्क. और मल्टीपल कंट्रीज के नेटवर्क आपस में जुड़ के एक इंटरनेट बनाते हैं. सो दिस इज हाउ द इंटरनेट इज बेसिकली फॉर्म्ड. सो मल्टीपल ISPs फॉर्म अ रीजनल नेटवर्क. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से एयरटेल का अपना एक नेटवर्क है, और वो जब जियो के नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ठीक है, BSNL के नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो वो मल्टीपल 3 ISPs हो गए, वो तीनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो एक रीजनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं. रीजनल नेटवर्क कनेक्ट टू फॉर्म अ नेशनल नेटवर्क. सारे आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक नेशनल नेटवर्क. और डिफरेंट कंट्रीज के जब नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेट. सो दिस इज हाउ द इंटरनेट इज बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट इज लेट अस सी सम एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. सो एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो वी हैव फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. देन इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, देन इज चैट, एंड देन वी हैव वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, दो वी हैव मोर एप्लीकेशंस बट दीज आर फ्यू ब्रॉड एरियाज ऑफ योर इंटरनेट एप्लीकेशंस. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब से. तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है, मतलब WWW इज बेसिकली योर वर्ल्ड वाइड वेब, एंड उसको हम लोग वेब भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट ओनली सिंपल वेब. इन शॉर्ट व्हाट इज इट, इट इज एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो अगेन इंटरनेट और WWW तो आपको लगता है कि सेम है, नहीं, सेम नहीं है. इंटरनेट इज बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस वी कैन से. लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources, and the resources on the web can be shared or accessed through the internet. तो इंटरनेट एक मीडियम है जिसके थ्रू हम ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक्सेस कर पा रहे हैं. ओके, नाउ सर टिम बर्नर्स-ली, a British computing scientist, invented the revolutionary World Wide Web in the year 1990 by defining 3 fundamental technologies that lead to the creation of web. तो जब हम वेब की बात करते हैं, ये 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी हैं जो आज की डेट में भी इस्तेमाल होती हैं, और वो टेक्नोलॉजी हैं, फर्स्ट इज HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL, that is Uniform Resource Locator, and third is HTTP, that is Hyper Text Transfer Protocol. So ये 3 बेसिक और फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज जोड़ के हमारा वेब फॉर्म करती हैं या वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म करती है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज URL. Now what is URL? Now URL is basically, the full form of URL is Uniform Resource Locator. Okay, now if you see the word resource, आप जब भी वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर किसी रिसोर्स को ढूंढते हो तो उसका कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम लोग URL बोलते हैं. ठीक है, सो हाउएवर इट इज नॉट ओनली द डोमेन नेम बट कंटेन्स द अदर इंफॉर्मेशन दैट कंप्लीट्स अ वेब एड्रेस. तो पूरे एड्रेस को, पूरे कंप्लीट एड्रेस को हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी http://www.ncert.nic.in देन /textbook/textbook.htm. सो इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं इस URL के अंदर. सो इस URL के अंदर इफ यू सी दिस HTTP, दिस इज बेसिकली द प्रोटोकॉल. तो HTTP इज व्हाट, दिस इज योर प्रोटोकॉल. ओके, देन व्हाट इज दिस WWW, इसको हम लोग बोलते हैं सब डोमेन, इसको हम लोग बोलते हैं सब डोमेन. देन व्हाट इज ncert.nic.in, दिस इज एक्चुअली नोन एज योर डोमेन नेम, इसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं. एंड देन वी हैव दिस टेक्स्ट बुक. सो टेक्स्ट बुक क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं पाथ या फिर डायरेक्टरी. एंड फाइनली textbook.htm, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स जो हमें शो होता है या डिस्प्ले होता है. सो दीज डेज इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन
protocol and subdomain while entering a URL, the browser automatically prefixes it. तो आज की डेट में हम बिना HTTP लगाए, बिना ये www लगाए भी अपनी वेबसाइट्स को खोल सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली वो उसको प्रीफिक्स कर देता है. कौन? ब्राउजर. नेक्स्ट इज योर HTTP. व्हाट इज HTTP? HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स. व्हाट इज इट? HTTP क्या है? बस ये नोट कर लेना, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स. ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें, पॉइंट्स आप नोट करके रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा याद रखने में. सो व्हाट इज HTTP? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू रिट्रीव लिंक्ड वेब पेजेस across the web. Its more secure and advanced version is HTTPS. Okay, now ये काम कैसे करता है? जब भी आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, अपने ब्राउजर पे आपने टाइप किया google.com, तो वो HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट होगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर उसको लेगा एंड देन रिस्पॉन्स वापस भेज देगा आपके कंप्यूटर को. सो दैट इज HTTP, रिक्वेस्ट मैसेजेस एंड देन रिसीव्स मैसेज. तो ये हमारा सारा काम कौन कर रहा है? ये प्रोटोकॉल हैंडल कर रहा है. दैट इज HTTP. सो इट इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज टू रिट्रीव और आपका रिसीव योर डाटा फ्रॉम द वेब वी कैन से, और वेबसाइट वी कैन से. Now let us see the difference between web and internet. बहुत ज़्यादा confusing होता है ये दोनों terms. Web और internet क्या same है? No. Internet is basically your global network of interconnected computers or computing devices which may or may not have any file or web page. मतलब उसके अंदर ज़रूरी नहीं, वो तो interconnection है. खाली connection को हम लोग बोलेंगे internet. ठीक है. अब उसमें कोई डाटा हो या ना हो उससे मतलब नहीं. It is basically simple the connection. जैसे नेटवर्क बोलते हैं ना, तो नेटवर्क इज डिफरेंट. नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन. उसी तरह से इंटरनेट इज योर ग्लोबल नेटवर्क. तो मेन चीज है कि इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ही है, लेकिन कैसा नेटवर्क है? ग्लोबल नेटवर्क है. ठीक है. वेरएज जब हम वेब की बात करते हैं, सो वेब इज बेसिकली योर www जिसका शॉर्ट फॉर्म है. द वेब ऑन द अदर हैंड इज द इंटरलिंकिंग ऑफ कलेक्शन वेब पेजेस. ठीक है. इंटरलिंकिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो बहुत सारे कलेक्शन है वेब पेजेस के, वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो वो हमारा वेब फॉर्म करता है. सो ऑन दीज कंप्यूटर्स विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, एंड www टुडे गिव्स यूजर्स access to vast collection of information created and shared by people across the world. It is today that most popular information retrieval system. So it is today the most popular information retrieval system. What? The World Wide Web, या हम जिसको बोलते हैं खाली सिर्फ वेब के नाम से भी जानते हैं उसको. Now let us see what is email. Now email is another application of internet. Okay, so email is a short form of electronic mail and it is one of the ways of sending and receiving messages using the internet. तो इंटरनेट पे आप डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए you can use electronic mail. So an email can be sent anytime to any number of recipients at anywhere and the message can either be text or an attached file. ठीक है. तो आप जो मैसेज भेजते हो वो नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर कोई अटैच्ड फाइल के साथ भेज सकते हो, जिसके अंदर टेक्स्ट भी फाइल हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है. इसके अलावा बहुत कुछ और भी हो सकता है. ओके. सो एन एग्जिस्टिंग फाइल कैन बी सेंट एज एन अटैचमेंट विद द ईमेल, सो नो नीड टू टाइप इट अगेन. सो टू यूज ईमेल सर्विसेज वन नीड्स टू अगर ईमेल सर्विस यूज करें तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जहां पे हमें रजिस्टर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव Gmail, okay, we have Yahoo Mail and we have Outlook. Okay, so these are three popular, we can say, email service providers or email services. Okay, now let us see some of the common facilities available for an email user. तो email user के पास क्या क्या वो कर सकता है? वो email create कर सकता है, वो email भेज सकता है, रिसीव कर सकता है, वो ईमेल की कॉपी को भेज सकता है दूसरों को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी. दैट इज इफ अगर वो यूजर ये चाहता है, जो सेंडर है वो ये चाहता है कि दूसरों को ना पता चले किस किसको भेजी है, तो वो BCC कर सकता है उसकी कॉपी को, जिससे दूसरों को नहीं पता चलेगा कि किस किस को और फॉरवर्ड की गई है उसकी कॉपी. लेकिन अगर वो कार्बन कॉपी करता है तो सबको विजिबल होंगे एड्रेसेस कि किस किस को यही सेम मेल की कॉपी सेंड की गई है. देन इज वो फॉरवर्ड कर सकते हैं. कोई ईमेल आया, किसी और को भेजना है, वो फॉरवर्ड करना है, वो कैन फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ईमेल को. वो फिल्टरिंग इज ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज स्पैम ईमेल्स जो होंगे वो फिल्टर हो सकते हैं. वी कैन ऑर्गेनाइज आवर ईमेल्स इन फोल्डर्स एंड सम फोल्डर्स. वी कैन क्रिएट एंड मैनेज ईमेल IDs एंड वी कैन सेट इवन द सिग्नेचर एंड फुटर एज वेल. वी कैन इवन प्रिंट ईमेल्स एंड वी कैन इवन सर्च
थ्रू द ईमेल्स। तो कोई ईमेल हमें सर्च करना है, ऊपर सर्च ऑप्शन होता है, वी कैन सर्च दैट टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने भी ईमेल हमारे पास होंगे वो सारे विजिबल हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैसिलिटीज दैट यू कैन अवेल थ्रू ईमेल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज चैट। सो चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट मीन्स communicating to people at different geographic locations in real time। ये ध्यान रखना। अब नाउ रियल टाइम का मतलब हो गया उसी टाइम आपने मैसेज जैसी बटन दबाया सेंड का, ऑटोमेटिकली इट इज रिसीव्ड बाय अनदर डिवाइस, ओके, एंड देन आप रियल टाइम पे एक दूसरे से टेक्स्ट मैसेजेस शेयर कर सकते हो। नाउ व्हाट ऑल यू कैन डू थ्रू चैट, it is possible to send images, send documents, send audios, send videos as well as through these instant messages. Now applications such as examples क्या है chatting applications के, WhatsApp, Slack, Skype, Yahoo Messenger, Google Talk, Facebook Messenger, Google Hangout. So these are popular instant messengers. You can even think of that Instagram messages. That is also your kind of a chatting application. Okay. Now let us move further and see the last applications of the internet, and that is your VoIP. and बहुत frequently इससे related question आता है. The full form of VoIP is Voice over Internet Protocol. Again protocol की जब भी बात आती है तो protocol का मतलब हो गया rules. Okay, so now Voice over Internet Protocol or VoIP allows us to have a voice call, जिसको हम टेलीफोन सर्विस बोलते हैं, ओवर द इंटरनेट। अगर इंटरनेट के थ्रू आप किसी से ऑडियो या वीडियो कॉल बात कर सकते हो, ठीक है, that is your VoIP that is done through this VoIP protocol. So that is the voice transmission over a computer network rather than through the regular telephone network. So it is also known as internet telephony और broadband telephony. तो हम VoIP को क्या बोल सकते हैं, internet telephony भी बोल सकते हैं या फिर broadband telephony भी बोल सकते हैं। So to avail this service we need to have an internet connection with a reasonably good speed. तो इस सर्विस को अवेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। दो एडवांटेज VoIP का क्या है, ये बिल्कुल फ्री है या फिर अगर फ्री नहीं है तो इकोनॉमिकल होता है बहुत। नाउ नेक्स्ट इज VoIP कॉल्स कैन बी रिसीव्ड एंड मेड फ्रॉम एनी प्लेस। दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको अवेल कर सकते हो इस फैसिलिटी को, बस आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। ओके, डिसएडवांटेज क्या है VoIP का कि आपकी जो कॉल क्वालिटी होगी वो डिपेंडेंट होगी आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो आपके इंटरनेट की अगर स्पीड कम है तो इसका मतलब होगा कि जो वॉइस कॉल होगा उसकी क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। सो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ अ VoIP। अदरवाइज VoIP बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। दैट मीन्स आपका VoIP का एग्जाम्पल हो गया व्हेन यू डू अ वॉइस कॉल यूजिंग योर व्हाट्सएप, ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ VoIP। अगर आप कोई वीडियो कॉल करते हो, अगेन दैट यूजेस VoIP, ठीक है। सो दैट इज योर डिफरेंट एप्लीकेशंस, दैट वर योर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ योर इंटरनेट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वेबसाइट। तो वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो वेबसाइट होती क्या है। सो अ वेबसाइट यूजुअली रिफर्ड टू एज अ साइट इन शॉर्ट is a collection of web pages. So please again note down this line. So it is a collection of web pages related through hyperlinks. So what is website? It is a collection of web pages related through hyperlinks and saved on web server. So a visitor navigates from one page to another by clicking on hyperlink. तो एक पेज से वो दूसरे पेज पे किसके थ्रू जाता है, using these hyperlinks only. So also all the pages of website are integrated under one domain name and have a common theme and template. Okay, अगर एक वेबसाइट होगी तो उसका कॉमन थीम और टैम्पलेट एक जैसा ही होगा, उनका लुक जो होगा सारे पेजेस का एक जैसा नजर आएगा आपको। ओके, दैट इज योर वेबसाइट। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक्स। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेबसाइट, क्यों हम वेबसाइट बनाते हैं। सो द वेबसाइट्स पर्पस इज टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक हमें पहुंचानी है तो हम वेबसाइट बना सकते हैं। Now, website is a means that helps to communicate with people in a specific, then is transparent and user-friendly manner. Website should be user-friendly and provide information to user with minimum efforts. Website should be designed keeping in mind different categories of people that will be visiting the site. So, ये कुछ we can say कि हमारे suggestions दिए हुए हैं कि website हमारी होनी कैसी चाहिए, ठीक है। Now some of the common purposes for which websites are designed, कुछ common purposes जिसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन होती हैं वो हैं जैसे कि सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या फिर पोस्टिंग एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और मे बी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, या फिर कोई आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उस सॉफ्टवेयर को आप
लोगों तक विजिबल करना चाहते हो कि दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर. So disseminating contents and software. So that is the major purpose of making websites. Okay. Then is what is web page? So you have seen website. Now what is a web page? So a web page also referred to as a page. आप उसको simple page भी बोल सकते हो. ये क्या है? Is a document on the World Wide Web. That is retrieved in a web browser, or we can say that is viewed in a web browser. तो ब्राउजर पे जो भी आपको पेज नजर आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज. Now basic structure of web page is created using HTML, that is hypertext markup language, and दूसरी जो लैंग्वेज यूज होती है that is your CSS, that is cascading style sheets. So web page क्या है? It is a part of the website. Okay. So web page क्या है? वेबसाइट का पार्ट है. Now scripts make a web page interactive. So JavaScript is the most popular and commonly used scripting language in your web pages. तो web pages में सबसे ज़्यादा scripting language कौन सी यूज़ होती है? JavaScript. लेकिन आज की डेट में हम Python भी यूज़ कर सकते हैं, PHP भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर scripting language की बात करें तो JavaScript हो गई, Python होगी, PHP होगी. ये हम अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं to make our web page more interactive. फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज. जो पहला पेज आपकी वेबसाइट का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं. सो इट जनरली कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स टू ऑल द रिलेटेड वेब पेजेस. तो जो पहला आपका होम पेजेस होगा वो बाकी पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. आप उन पे लिंक पे क्लिक करके उन पेजेस तक भी जा सकते हो. सो दिस इज हाउ योर वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड. एंड इंटरलिंक्ड जितने भी आपके वेब पेजेस होंगे वो सारा जुड़ के एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं. Now let us see the difference between static and dynamic web pages. दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं. एक होता है static web page, दूसरा होता है dynamic web page. तो static web page होगा whose content always remains static. मतलब कि एक बार बन गया वो सबको एक जैसा ही नजर आएगा. So does not change for a person to person. Whereas a dynamic web page is one in which the content of the web page can be different for different users. जो आपका वेब पेज होगा वो different users को different तरीके से दिखाया जाएगा. सो नो एडिशनल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द पेज. बहुत सिंपल होता है. जैसे आपका कोई भी वेबसाइट का लॉगिन पेज होगा वो हम बोल सकते हैं कि वो स्टैटिक पेज है, वो सबको एक जैसा ही नजर आएगा. लेकिन जो डायनेमिक वेब पेज होगा, बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्टेड वेब पेज द सर्वर में परफॉर्म सम एडिशनल प्रोसेसेस लाइक गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस, updating date and time, updating weather information etc. The content of such pages changes frequently. तो ऐसे पेजेस का जो कंटेंट होगा वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है. आप इसके लिए एग्जांपल समझ सकते हो कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें जैसे ही आपको स्कोर अपडेटेड दिखाता रहता है, दैट इज योर डायनेमिक वेब पेज. वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके. देन इज अ स्टैटिक वेब पेज आर जनरली रिटन इन HTML, JavaScript एंड CSS एंड हैव द एक्सटेंशन .htm या फिर .html. तो जो स्टैटिक वेब पेज होगा वो HTML, JavaScript और CSS को यूज करके बनाया जाता है और उसका एक्सटेंशन होता है .htm और .html. लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस जो होंगे उनको बनाने के लिए वी नॉर्मली यूज JavaScript, PHP, ASP.NET, Python, Java, Ruby etc. अब बोलोगे कि सर JavaScript तो यहाँ पर भी है और JavaScript यहाँ पर भी है. तो दैट मीन्स JavaScript is a very flexible language that can be used for static web pages as well as for the dynamic web pages as well. Okay. Now let us move further. So let us see what is a web server. So now web server क्या है? So web server is used to store and deliver the content of a website. तो वेबसाइट का जो भी कंटेंट होगा उसको स्टोर करके रखना और उसको कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको रिस्पॉन्स देना, वो किसका काम है? वेब सर्वर का काम है. ओके. नाउ टू क्लाइंट सच एज ब्राउजर दैट रिक्वेस्टेड. सो वेब सर्वर एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर. अगर सिर्फ हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो इट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंटेंट्स. जितनी भी फाइल्स होंगी, हमारे वेब पेजेस होंगे, वो सारे के सारे इस कंप्यूटर में स्टोर होंगे. तो इसलिए इसको बोल रहे हैं वेब सर्वर एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर. द सर्वर नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट. इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेब सर्वर है ये 24 आवर्स 365 डेज इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहिए. अगर इंटरनेट से डिसकनेक्ट हो गया तो आपका वेब पेज या वेबसाइट ओपन होनी बंद हो जाती है. देन इज वेब सर्वर एज अ सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज अ स्पेशलाइज प्रोग्राम दैट अंडरस्टैंड्स URLs और वेब एड्रेस कमिंग एज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर एंड रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट. तो इसका मेन ये काम हो गया कि कंप्यूटर में तो रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन उसको हैंडल करने के लिए भी तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना. तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस रिक्वेस्ट को लेता है एंड देन रिस्पॉन्ड करता है ताकि ब्राउजर तक वो रिस्पॉन्स पहुंच सके. सो द वेब ब्राउजर फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स अ HTTP रिक्वेस्ट
for a page containing a desired data service, the web server then accepts that request, interprets that request, सर्च करता है अपने सर्वर में, ठीक है, कि वो पेज है भी या नहीं है, और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है उस पेज के साथ में. अगर कोई ऐसा पेज है जो है ही नहीं तो 404 एरर आपने नॉर्मली देखी होगी, वो आ जाता है, दैट इज पेज नॉट फाउंड एरर आती है ना, तो वो इसीलिए आती है बिकॉज सर्वर के पास तो रिक्वेस्ट गई लेकिन सर्वर को वो पेज मिला नहीं. फाइन. सो दिस इज हाउ द वेब सर्वर एक्चुअली वर्क्स. सो नेक्स्ट इज हाउ कैन वी होस्ट अ वेबसाइट. तो अपनी वेबसाइट को हम होस्ट कैसे करें. तो अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए मेन चीज़ है वेब होस्टिंग क्यों करते हैं. सो इट बेसिकली अ सर्विस दैट अलाउज अस टू पुट अ वेबसाइट और वेब पेजेस ऑन टू द इंटरनेट. इंटरनेट पे हमें अपनी वेबसाइट या वेब पेज को अगर रखना है, डालना है, तो हम क्या करते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस लेते हैं. और जब वो सर्विस लेते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बन जाता है. टू होस्ट अ वेबसाइट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. फर्स्ट इज, जो पहला काम हमारा है वेबसाइट होस्ट करने के लिए, वो है पहले ये ढूंढना कि कहाँ पे होस्ट करनी है. तो वी नीड टू लुक फॉर दी वेबसाइट होस्टिंग और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि GoDaddy आपने नाम सुना होगा, तो वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है. देयर आर मेनी मोर. इफ यू सर्च ऑन द गूगल वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ नेम्स. ठीक है, तो पहला काम है आपको वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना, उनके प्राइजेस चेक करना कि वो एनुअल कितना फीस आपसे लेता है, वो आपने देख लिया. देन इज यू आइडेंटिफाई कि मेरे को डोमेन नेम क्या लेना है. अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो यू नीड टू गेट द डोमेन नेम एज वेल. आफ्टर दैट यू नीड टू परचेज दी वेब स्पेस. जब आपने वेब स्पेस ले ली तो जो आपने डोमेन नेम लिया है उस वेब स्पेस का आपको आईपी एड्रेस नोट डाउन करना पड़ता है, और फिर उस वेब स्पेस जो आपने खरीदी है उस पर अपनी फाइल्स को क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा. जितनी फाइल आपने डिजाइन की है अपनी वेब पेजेस वो सारी उस वेब स्पेस पे अपलोड करनी पड़ेंगी. वो जब अपलोड हो जाती हैं, जो आपने आईपी एड्रेस नोट डाउन किया था वो आप डोमेन नेम के साथ उस आईपी एड्रेस को मैप कर देते हो, एंड वंस दैट इज डन आपकी वेबसाइट जो है ग्लोबली अवेलेबल होती है. कोई भी आपकी वेबसाइट का नाम लिखेगा, एंटर प्रेस करेगा ब्राउजर पे, तो वो वेबसाइट विजिबल हो जाती है सबको. सो व्हाट इज दैट डोमेन नेम सिस्टम. सो इट इज अ सर्विस दैट डज द मैपिंग बिटवीन डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस. तो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस किसका है, आपका वेब सर्वर का है. तो वेब सर्वर का पास जब भी वो नाम लिखेंगे तो वो आईपी एड्रेस ढूंढेगा, उस सर्वर पे जाएगा, उस सर्वर से वो फाइल को फेच करेगा और आपको वापस भेज देगा वो फाइल को. सो व्हेन द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इज एंटर्ड इन द वेब ब्राउजर, द डीएनएस फाइंड्स आउट द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्टेड डोमेन नेम एंड सेंड्स द रिक्वेस्ट टू दैट सर्वर. तो उस सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेजता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ बेसिकली वेब होस्टिंग एक्चुअली वर्क्स. तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट, सेलेक्ट द वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, identify the domain name, get a web space, note down the IP address, upload the files on the web space and get the domain name mapped to the IP address. So ये स्टेप से आपकी वेब होस्टिंग कंप्लीट हो जाती है. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, एंड दैट इज बेसिकली विल सी व्हाट आर ब्राउजर्स. सो ब्राउजर क्या है, ब्राउजर हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, या हम बोल सकते हैं सिंपल सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स टू व्यू द वेब पेजेस और वेबसाइट. तो वेबसाइट या वेब पेजेस को देखने के लिए, ओपन करने के लिए वी नीड दिस ब्राउजर. सो ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर. सो सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर आर गूगल क्रोम. ठीक है, डोंट राइट क्रोम, जस्ट राइट गूगल क्रोम. देन इज एज. ठीक है, देन वी हैव माई मोजिला फायरफॉक्स, देन ओपेरा एटसेट्रा. सो अ वेब ब्राउजर प्लेस द HTML डॉक्यूमेंट्स विच मे इंक्लूड टेक्स्ट. सो वेब ब्राउजर में आपको जो पेजेस डिस्प्ले होंगे उसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, ऑडियो हो सकती हैं, वीडियो हो सकती हैं, हाइपरलिंक्स हो सकती हैं. तो वो सारा जो हैंडल करता है दैट इज बीइंग हैंडल बाय दिस वेब ब्राउजर. सो वेब ब्राउजर क्या है, एक वी कैन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट इज हेल्प्स अस टू व्यू योर वेब पेजेस और वेबसाइट्स. देन इज लेट अस सी व्हाट आर एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स. सो एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स आर द टूल्स दैट हेल्प टू एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउजर. तो अभी हम लोगों ने देखा ना ब्राउजर क्या होता है. तो ब्राउजर की अगर हमें फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, तो नॉर्मल ब्राउजर का मेन काम है सिर्फ वेब पेजेस को डिस्प्ले करना, लेकिन उसी के अंदर और फैसिलिटी आपको चाहिए कि वो स्पेल चेक भी कर सके जब आप कुछ टाइप कर रहे हो. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके वेन एवर यू आर टाइपिंग समथिंग इट ऑटोमेटिकली गिव्स द सजेशन टू यू. ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टूल्स दैट कैन हेल्प यू टू एक्सटेंड और मॉडिफाई द फंक्शनलिटी ऑफ द वेब ब्राउजर. सो बोथ द टूल्स, दोनों ही एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स, दोनों का ही काम है आपकी ब्राउजर की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना या मॉडिफाई करना. सो बोथ द टूल्स बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्राउजर बट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो लेट अस सी व्हाट इज एड-ऑन्स एंड व्हाट आर प्लगइन्स.
So now an add-on is not a complete program. सब add-on की बात करते हैं. It is not a complete program and so is used to add only. नाम है ना add on. ठीक है, add only a particular functionality to the browser. तो ब्राउजर में कोई एक फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं एड ऑन. एंड एड ऑन इज ऑल्सो रेफर टू एज एन एक्सटेंशन. तो एड ऑन्स को हम किस नाम से जान सकते हैं? एड ऑन को हम लोग एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं. ओके, देन इज प्लगइन्स क्या है? प्लगइन कंप्लीट प्रोग्राम है. तो ये चीज ध्यान रखना, एड ऑन्स कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, लेकिन प्लगइन्स जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम है. मतलब सॉफ्टवेयर में पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा और बाकी प्रोग्राम्स भी उसको यूज कर सकते हैं. ब्राउजर के अलावा भी वो जो प्लगइन है वो इस्तेमाल हो सकता है. ओके, एंड इट एडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ साउंड. एग्जांपल है ये कुछ, जैसे कि फंक्शनैलिटी ऑफ अ साउंड एंड ग्राफिक्स कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एन एड ऑन. ओके, वेयर एज प्लगइन का एग्जांपल है फ्लैश एंड जावा आर प्लगइन्स. ओके, देन इज एन एड ऑन इज एडेड ओनली इन द ब्राउजर. तो आपका जो एड ऑन है वो किस में ऐड होता है? सिर्फ ब्राउजर में ऐड होता है, आपके कंप्यूटर में नहीं होता है. तो वो दूसरी एप्लीकेशंस उसको यूज नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो ब्राउजर में ही ऐड हुआ है. लेकिन जो प्लगइन है वो पूरा का पूरा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, तो दूसरी एप्लीकेशंस भी उसी चीज को इस्तेमाल कर सकती हैं. ठीक है, सो ये आपके कुछ डिफरेंस हैं बिटवीन एड ऑन्स एज वेल एज प्लगइन्स, एंड एड ऑन्स आर ऑल्सो नोन एज योर एक्सटेंशंस एज वेल. Okay, now let us see what are cookies. So cookies क्या है? So now cookie is a text file. तो main क्या है? ये चीज ध्यान रखना कि cookie क्या है? It is a text file containing a string of information. ठीक है, so it actually contains a string of information which is transferred by the website to the web browser. तो वेबसाइट से वेब ब्राउजर पे आके वो स्टोर होके रह जाते हैं. ठीक है, Now this string of information gets stored in the form of a text file in the web browser. तो कुकी कहाँ पे स्टोर होती हैं? सर्वर पे कि ब्राउजर पे? So they are stored on the browser only. Now it helps in customizing the information that will be displayed. For example, तो इसका एडवांटेज क्या है कुकी का? So इसका एडवांटेज ये होता है कि it remembers our choice of language, it remembers our login credentials. कि हमने लॉगिन कर लिया तो जैसे हम उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटो लॉगिन कर देगा. It remembers our shopping preferences. It displays advertisements according to our own interest. तो वो ad भी दिखाएगा तो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड दिखाएगा, कोई ऐसे ad नहीं दिखाएगा जिससे हमारे कोई मतलब ही नहीं है. So these are some of the advantages of these cookies. Okay. Now let us see कि are cookies harmful? क्या cookies harmful होती हैं? Generally cookies harmless होती है. क्यों? वो टेक्स्ट फाइल में स्टोर होती हैं. सो दे कांट एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑफ अ यूजर और ट्रांसमिट वायरस और मैलवेयर. सो इट इज द ब्राउजर ऑन द कंप्यूटर विच स्टोर्स एंड मैनेजेस द कुकी. तो मेन को किसका काम है आपको कुकी को हैंडल करना? वो है ब्राउजर का काम. तो जितना अच्छा ब्राउजर होगा वो उतनी अच्छी तरीके से कुकी को स्टोर करके रखेगा और वो उसको मिसयूज नहीं होने देगा. फाइन. नाउ हाउएवर, लेकिन हो सकता है वायरसेस कैन ऑल्सो बी ट्रिग्ड एज अ कुकी एंड cause harm to a computer. जनरली हार्मलेस होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर वो ब्राउजर में फंक्शनलिटी ना हो कि वो डिटेक्ट कर सके कि वेदर इट इज अ कुकी और अ वायरस, देन दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. सो वन कैन डिसेबल कुकीज बाय चेंजिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ अ ब्राउजर. तो ये इसलिए है कि क्या हम कुकीज जो है उसको डिसेबल कर सकते हैं? येस, वी कैन डिसेबल कुकीज. तो हम अपनी कुकीज़ को डिसेबल कर देंगे तो हमारे ब्राउज़र में वो कुकीज़ स्टोर नहीं होंगी. लेकिन फिर आपकी जो पर्सनलाइजेशन है, जैसे कि ऑटोमेटिक ऑटो लॉगिन फीचर वगैरह, सब क्लोज हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे. व्हेनेवर यू विल बी ओपनिंग अ वेबसाइट आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, सो थैंक यू. दैट वाज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.